Welcome student. Let's start our today's class, and for today's class I have chosen to explain you the topic the sexual reproduction, and it is the point number 8.3 of the sexual reproduction. Let's study in detail. So first of all, what is the sexual reproduction? Sexual reproduction is a kind of reproduction in which an organism or the two individuals involved. The sexual reproduction is the kind of reproduction in which two individuals are involved, in which one individual is just opposite to the another individual, means two different sexes are there, and both of the two sexes produce two different kinds of gametes, and the fusion of gametes but give rise to a new organism by the new generation. Hope you understood. Sorry. So let's study each and every line. We are familiar with the mode of reproduction that depend on the involvement of two individuals. So which kind of mode of reproduction involve the two individuals? Before new generation can be created. For creating a new generation, which kind of reproduction involve two different individuals? Yeah, sexual mode of reproduction. The example is also given over here. Bull alone cannot produce a new calf. Bull matlab, yes, सांड. सांड itself cannot be able to give birth to the calf. Similarly, if I say hen cannot produce egg without the involvement of the cock. So two opposite sexes are required to produce a new generation. In such cases, both the sexes, male and female, are needed to produce a new generation. Now, NCERT question asking two questions. First question, what is the significance of sexual reproduction? So there must be some significance of the sexual reproduction over asexual reproduction. Means the organism, whatever it present on the earth, try to do their best as sexual mode of reproduction. During you can say under unfavorable condition, they have to do asexual mode of reproduction, but naturally they want to do sexual mode of reproduction. So the question is asking over here, why organism try to do the sexual mode of reproduction? There must be some significance of sexual mode of reproduction. कुछ तो फायदा होगा sexual mode of reproduction में ओवर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस हैं, यानी कि डिसएडवांटेज. एंड इन माय नोट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. लेट स्टडी दैट. ओके, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट गुड with comparison with the sexual mode of reproduction, and you can say why sexual mode of reproduction is more important for against the asexual mode of reproduction. तो चलो पढ़ते हैं. Just let study why the sexual mode of reproduction, why organism prefer the sexual mode of reproduction. So the creation of two new cells from one involving copying of DNA means a mother cell when give rise to the two daughter cell. During that, the mother cell contain a single nucleus, and inside the single nucleus there is a limited amount of DNA. When this mother cell try to give birth to two daughter cell, at that time it has to copy its own DNA. मतलब जब मदर सेल को डॉटर सेल पैदा करना होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उस समय जो डीएनए उनके अंदर मौजूद होता है, मदर सेल के अंदर मौजूद होता है, वो लिमिटेड अमाउंट में होता है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों डॉटर्स में. एट दैट टाइम दे हैव टू कॉपी देयर डीएनए. उस समय वो क्या करते हैं, अपने डीएनए को कॉपी करते हैं. एंड व्हेन द डीएनए जस्ट कॉपीड फ्रॉम द मदर डीएनए, एट दैट टाइम देयर माइट बी सम inaccuracy in the DNA formation और DNA copying. मतलब जब DNA मदर DNA से तैयार होता है, उस समय DNA के अंदर कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी रहता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तैयार होता है जो मदर सेल से डॉटर सेल में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. एंड दिस differences
are responsible for the variations which you already studied in the chapter evolution, isn't it? So the creation of two new cells from one involving copying of the DNA, means DNA get copied from mother cell to the daughter cell, as well as the cellular apparatus. Not only the DNA, other cellular apparatus like mitochondria, Golgi body, centrosome, lysosome, etc. also get divided and go to the each daughter cell. Understood? So the DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate. जो डीएनए बनता है मदर सेल से डॉटर सेल्स में आते हैं, वो पूरा का पूरा 100% एक्यूरेट नहीं होता. वो 99.9% या 99.8% या 99, थोड़ा सा डिफरेंस, वेरी माइनर डिफरेंस आर देयर, यू कैन से फ्रॉम इन द कॉपिंग ऑफ द डीएनए फ्रॉम मदर टू डॉटर. थोड़ा सा डिफरेंसेस रह जाता है, और वो थोड़ा सा डिफरेंसेस वेरिएशन का कारण बनता है, और वो वेरिएशन बेटर सर्वाइवल का चांस देता है उस डॉटर को. मतलब वो डॉटर उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके, इसके लिए ये जो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है. यानी मदर जिस इन्वायरमेंट में रह रही है, जिस इन्वायरमेंट में पैदा हुई है, डॉटर हो सकता है उस इन्वायरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो. एट दैट टाइम मदर के डीएनए और डॉटर के डीएनए में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, और वो डॉटर अपने का जो डीएनए होता है वो इस तरह से प्रोसेस्ड होता है, इस तरह से बना होता है ताकि वो बदलते इन्वायरमेंट में, बदलते नेचर में उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल का चांस दे. समझ में आया? Understood? So let's study each and every line. So the DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate. The resultant error, जो गलतियाँ होती है, the resultant error are the source of variations, and this source of variation is already studied by you in population of the organism. So these variations are very important. Every individual organism cannot be protected by variations. मतलब variations होते हैं. अब इस वेरिएशंस की भी बात होती है. कुछ वेरिएशंस अच्छे होते हैं, कुछ वेरिएशंस बुरे होते हैं. जो अच्छे वेरिएशंस होते हैं वो उनको बेटर सर्वाइवल का चांस देते हैं और ज़्यादा सर्वाइव करने में मदद करते हैं. लेकिन जो बुरे होते हैं, जो वेरिएशंस ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट होते हैं, वो उस बच्चे को, उस इंडिविजुअल को उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने नहीं देते हैं, क्योंकि वो चेंजेस अच्छे नहीं होते, नेचर को सपोर्ट नहीं करते. सपोज ये एक डीएनए है, डीएनए कॉपी होते समय क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग आया, और ये डीएनए जब डॉटर सेल में आया तो ये डॉटर सेल क्या हो गया? कैंसरस हो गया. डीएनए के अंदर में बहुत सारे ऑन्कोजीन्स होते हैं जिसको हम लोग कैंसरस जीन्स भी कहते हैं. अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट मान लो कि वो ऑन्कोजीन्स किसी कारण से, वो एक तरह का जीन है, वो ऑन्कोजीन्स एक्टिव हो गया, यहाँ मदर में इनएक्टिव था, तो यहाँ क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया, यानी कि थोड़ा चेंजिंग, थोड़ा वेरिएशंस आया. ये वेरिएशंस इसको सर्वाइव करने में मदद करता, बट कैंसरस होने के कारण ये इस सेल को ही मार डाला. तो ज़रूरत नहीं है कि जो वेरिएशंस होंगे वो हर टाइम अच्छा ही होगा और सर्वाइवल में ही चांस करेगा. सो दो तरह के वेरिएशंस हैं, अच्छे और बुरे. जो अच्छे वेरिएशंस होंगे वो सर्वाइवल में मदद करेंगे, जो बुरे वेरिएशंस होंगे वो सर्वाइवल में मदद नहीं करेंगे. सो एवरी इंडिविजुअल organism cannot be protected by variation, but in population variations are useful for their survival of the species. समझ में आया? सर्वाइवल करने में मदद करता है. It would therefore can make sense of organism if organism come up with reproductive mode that allowed more and more variations to be generated. यदि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उनके अंदर वेरिएशन थोड़ा हर जनरेशन में ऐड होता जाएगा, और ये वेरिएशंस धीरे उसको इवोल्यूशन करने में मदद करेगा और उसको उस इन्वायरमेंट में, उस नेचर के हिसाब से बेटर सर्वाइवल में मदद करेगा. अंडरस्टूड? सो वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म is not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation or variation a fairly slow process. ये जो कॉपी है, कॉपी बनना, डीएनए का कॉपी बनना, द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपी मैकेनिज्म इज नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट. एग्जैक्टली कॉपी नहीं बनता. एग्जैक्ट कॉपी मीन्स 100% कॉपी नहीं होता. दे आर प्रिसाइज, बहुत लंबे तरीके से होते हैं, एंड
there is a very minute variation that generate in one generation and that is spread to the next generation, and again there must be some other variation that added with that variation and again go. So you can say the variation move from one generation to another generation and accumulate or collected, and that's why the variation is very slow process. Creating a variation is very slow process, धीरे धीरे जाते हैं one generation to another. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, यानी DNA बहुत कम एक्यूरेट हुआ है, बहुत कम, यानी कि दो मदर डीएनए से डॉटर डीएनए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसीलिए तो कम एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट. सो इफ द डीएनए दैट फॉर्म्स इन द मदर डॉटर इज जस्ट डिफरेंट and very less accurate, at that time this less accuracy of the DNA do not allow to survive the daughter cell. ये जो मैंने क्या कहा 99.9% एक्यूरेट होना चाहिए या 99.8% या मान लो कि 99% तक कम से कम एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन यदि मान लो कि लेस एक्यूरेट है, मान लो 70% इक्वल है बट 30% डिफरेंट है, ये 30% सर्वाइव नहीं करने देगा. लेस एक्यूरेसी विल नॉट अलाउ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड द organism will die. देखो लिखा है if the DNA copying mechanism were be less accurate, maybe the resultant DNA copy would not be able to work, काम ही नहीं करेगा with the cellular apparatus and would die, और क्या हो जाएगा, मर जाएगा. So how can the process of making variants be speed up? ये जो प्रोसेस ऑफ वेरिएशंस हैं वो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, धीरे धीरे गैदरिंग होता रहेगा और गैदरिंग होते 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 ये वेरिएशंस आ जाएंगे. सो द न्यू जनरेशन मेड फ्रॉम द डीएनए कॉपिंग दैट हैज ऑलरेडी हैव ए वेरिएशन एक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन से न्यू जनरेशन में आता है. दस द टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन वुड क्वाइट डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस. अब बात आती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मदर भी हैं और फादर भी, और मदर में भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस आया हुआ है और फादर में भी वेरिएशंस आए हुए हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं इन दोनों की वजह से जो बच्चा पैदा होता है वो इधर से भी वेरिएशन कैरी कर रहा है और इधर से भी वेरिएशन कैरी कर रहा है, और वेरिएशन कैरी करने के कारण ये अपने मम्मी से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, अपने पापा से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, और इसमें यू कैन से वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन डबल होता है. समझ में आया, यही लिखा हुआ है यहाँ देखो. सिंस ऑल दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग ऑन इंडिविजुअल, इट इज assured that they do not have any really bad effect. Combination of two or more individual would thus create new combination of variant, नया combination तैयार करता है, and each combination would be novel, और ये अच्छा होना चाहिए ताकि ये उस ऑर्गेनिज्म को उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में, उस कंडीशंस में सर्वाइव करने में मदद करे. सो द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, समझ में आया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन आएगा और वेरिएशन उनको बेटर सर्वाइवल का चांस देगा इन द नेक्स्ट जनरेशन. सो द रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के दौरान ये दोनों कैरेक्टर बच्चे में आते हैं और उनको सर्वाइव करने का, सर्वाइवल में मदद करते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन आता है, बट दिस क्रिएट मेजर डिफिकल्टी. अब क्या डिफिकल्टी आ गई भाई, इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, देन द न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट हैज बीन प्रीवियस जनरेशन हैड. अब प्रॉब्लम ये आ गई कि यदि एक जनरेशन से एक नंबर ऑफ क्रोमोजोम आता है, सपोज कि मदर से n नंबर ऑफ क्रोमोजोम आ रहा है, फादर से भी n नंबर ऑफ क्रोमोजोम आ रहा है, फादर से भी n नंबर ऑफ क्रोमोजोम आ रहा है, और जब ये कंबाइन हो जा रहे हैं तो बच्चे में क्या हो जा रहा है, ये 2n हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है. बट अगेन ये डबल वाला किसी दूसरे डबल वाले के साथ शादी करता है, सपोज ये मेल है एंड दिस इज अ फीमेल अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में
इनके जो बच्चे हैं वो 4n वाले हो जाएंगे। अगेन 4n कंबाइन करेगा तो 8n हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ईच जनरेशन विल बी डबल्ड। एंड यू नो number of chromosome never be doubled, or you can say a single chromosome number of a single chromosome cannot be changed in each generation in each organism. If there would be any kind of change in the number of chromosome, it can cause the death or serious genetic problem in that organism. नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज हो ही नहीं सकता वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, ये एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। इसमें से यदि मान लो एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है या एक क्रोमोजोम घट जाता है इन द नेक्स्ट जनरेशन, ये सीरियस जेनेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये सीरियस जेनेटिक प्रॉब्लम उस बच्चे को सर्वाइव करने ही नहीं देगा, और यदि सर्वाइव करने दे दिया तो वो किसी न किसी बड़े डेंजरस बीमारी से भोगता रहेगा। बहुत सारी बीमारियां हैं जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम के टुकड़े से, एक छोटा सा टुकड़ा यदि नंबर ऑफ क्रोमोजोम का बढ़ जाता है उसके कारण भी वो बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई बेटा, क्लियर देखो। बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफिकल्टी इफ ईच जनरेशन, हर जनरेशन से इज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपी कंबाइन हो रहा है द टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, देन द ईच जनरेशन विल एंड अप थ्रू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो उनके पास 2 गुना डीएनए हो जाएगा, पहला वाला 2 गुना हुआ, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, हमेशा डबल होता जाएगा फ्रॉम प्रीवियस साइड, प्रीवियस के मुकाबले वो डबल होता चला जाएगा। एंड दिस इज लाइकली टू बी मेस ऑफ द कंट्रोल ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स। तो सेलुलर ऑपरेटर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ऑल द केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा डीएनए। बिसाइड ऑफ इफ द जनरेशन इज डबल डीएनए, फेयरली सून देयर विल बी ओनली डीएनए ऑन द अर्थ। और इसी तरह से यदि डबल होता चला गया तो फ्यू जनरेशन के बाद सिर्फ डीएनए ही होगा और कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा, विथ नो रूम फॉर एनीथिंग एल्स। समझ में आया? हाउ मेनी वे डू यू थिंक फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी? तो ये डिफिकल्टी जो आया जिसमें नंबर ऑफ जीन जो है और नंबर ऑफ डीएनए जो है और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल होता चला जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा, जरा देखते हैं। वी हैव सीन अर्लियर दैट द ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स and the specialization of the tissue increases. One solution that many multicellular organism has found for the problem mentioned above to be have a special lineage of cell is specialized organ which have only half the number of chromosomes. मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि ऑर्गेनिज्म ने कुछ इस तरह का प्रोसेस क्रिएट किया जिससे वो सिर्फ अपने बॉडी से हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम दे। सपोज मेरे बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, मेरे एक बॉडी के सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, और मेरी वाइफ के बॉडी के सेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। सो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म विच गिव्स द ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यानी मेरे बॉडी से कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिससे सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम जाएगा, नहीं हाफ। सेम मैकेनिज्म मेरे वाइफ के बॉडी में भी होगा, उनके बॉडी में भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, और जब ये दोनों मिलेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, एज सेम एज अस, में हम लोगों के जैसे ही बिल्कुल सेम होगा। सो वो क्या मैकेनिज्म है? देयर इज अ मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस द सेक्स सेल्स। ये जो सेक्स सेल्स होते हैं ये हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम कैरी करते हैं। अंडरस्टूड? हमारे जो सेक्स सेल्स हैं जैसे स्पर्म हो गया या ओवम हो गया, ये किस मैकेनिज्म से पैदा होता है? यह मियोसिस सेल डिवीजन से पैदा होता है। अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन विच ओनली टेक प्लेस एट द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक टेस्टिस एंड ओवरी। एक तरह का सेल डिवीजन जो टेस्टिस और ओवरी में ही होता है, और ये जो सेल डिवीजन है, इस सेल डिवीजन के कारण द नंबर ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम द इंडिविजुअल गेट हाफ इनटू द गैमेट्स। नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है, जो भी इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो गैमेट्स में जाके हाफ हो जाता है। गैमेट्स मतलब सेक्स सेल। सो व्हाट इज द मेल सेक्स सेल, और यू कैन से गैमेट? स्पर्म। So how many chromosomes are there in the sperm? 23. That is haploid number of chromosome. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Haploid number of chromosome. और इस मैकेनिज्म के थ्रू ये देखा गया
कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्ट टू देयर पेरेंट्स होगा, यानी उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा। अंडरस्टूड? यानी मेरे बच्चे में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, सेम जैसे कि मेरे अंदर है। चलो देखते हैं। Thus, when the germ cell from two individuals combine during sexual mode of reproduction to form a new individual, it resultant is the re-establish the number of chromosome. तो वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम को री-एस्टैब्लिश करेगा जो मेरे अंदर था। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सो इफ द जाइगोट इज टू ग्रो, इट डेवलप इनटू अ ऑर्गेनिज्म which has the specialized tissue and organ, and that has to be sufficient store for the energy for doing that. इन मतलब जो भी जाइगोट बनेगा उनके पास कुछ स्पेशल टिश्यू प्रोड्यूस करने के एबिलिटीज़ होंगे और वो एक्स्ट्रा एनर्जी वगैरह गैदर करके रखता है ताकि कुछ दिन तक वो सर्वाइव कर सके और रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन करके वो। तो क्या लिखा हुआ है? इफ द जाइगोट इज ग्रो, यदि जाइगोट ग्रो होता है एंड डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है विच हैज हाईली स्पेशलाइज्ड, उस ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ऑर्गन है, देन इट हैज टू बी सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी। तो उनके पास एनर्जी भी होना चाहिए क्योंकि ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, it is seen that the two germ cell are not very different from one another. दो germ cell जो होता है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में, बहुत अर्थवर्म टाइप के ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ये कीड़े मकोड़ों में, two different kinds of gametes look like same in the lower organisms, but in case of higher organism like us, one cell that is larger in size, that is called ovum, and this ovum contain a lots of food materials for further growth and development, and another that is called sperm, it is very small. हम लोगों में या फिर जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें दो डिफरेंट गैमेट बनता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, फीमेल गैमेट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और फीमेल गैमेट में स्टोर फूड रहता है ताकि जाइगोट बनने के बाद उनको एक्स्ट्रा फूड मिल सके, एनर्जी मिल सके और वो ग्रो हो सके। अंडरस्टूड? देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज सीन दैट द टू जर्म सेल आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन मेनी मे बी सिमिलर, but as that body design become more complex, thus germ cell also specialized. Germ cell यदि body design change होता जाता है तो germ cell भी change होता है। One germ cell is larger, contain a food store. One जो female वाला है that is ovum, उसमें food वगैरह store होता है, while the other is smaller, दूसरा जो होता है वो छोटा होता है, and motile, movable. फीमेल वाला मूव नहीं करता, वो एक जगह स्थिर रहता है, एंड मेल वाला मूव करता है, मूवेबल एंड मोटाइल। कन्वेक्शनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड मेल गैमेट। मोटाइल जर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेल गैमेट। एंड द नॉन मोटाइल इज कॉल्ड फीमेल गैमेट विच ऑल्सो स्टोर द फूड। और फीमेल वाले जो होती है वो नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते हैं, बड़े होते हैं साइज में, और वो तो देखो यहाँ पे गैमेट का भी डिज़ाइन अलग है ताकि वो बॉडी को एक अलग सा डिज़ाइन दे सके। ऊपर वाले ने इसको भी चेंज करके रखा है ताकि वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सके और सर्वाइवल के साथ साथ हेल्प भी कर सके फॉर न्यू डेवलपमेंट। सो वी हैव सीन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस हाउ डू वी दे क्रिएट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स। अब अगले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कैसे मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं ऑल। तो आज का सेक्शन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड all the things that I have explained over here, and I explained it in Hindi so that you can understand the whole phenomenon very clearly over here. Hope you are better learning, and just I am giving some questions along with this you can say lecture. You have to answer that question. Note it down in your copy. First question: name the different male and female sex cell. Name the different male and female sex cell produced by human being. Next,
What is the importance of sexual mode of reproduction? What is the importance of sexual mode of reproduction? Next, how the variations produced? How are the variations produced? How are the variations produced? Next, why the number of chromosomes in the gametes are just half to the body cells? Why the number of chromosomes in the gametes are just half to its just half to the body cell? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What is the morphological difference between the male and female gamete of the human being? What is the morphological difference between male and female gamete of human being? बस आज के लिए इतना ही. इसको कंप्लीट करिए आप लोग और होमवर्क को सेंड कीजिए. ओके, बाय बाय, सी यू.